Hello everyone, welcome to Flow Learning. Good morning, and today we are going to start lecture number 24, and we will start lecture number 24 from some practice problems. ठीक है, तो देखते हैं practice problems. First question is 30 gram of urea whose molecular weight mass is 60 gram per mole is dissolved in 846 gram of water. तो W2 की वैल्यू दे रखी है इसमें और W2 की वैल्यू दे रखी है, M2 दे रखा है, W1 दे रखा है. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. ठीक है, तो यानी कि ये दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, पी नॉट की वैल्यू आप इसका पी निकाल सकते हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a solute in it. Third question is, ये भी बहुत इजी है, निकल जाएगा. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a solute. ठीक है. थर्ड है the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 262 bar. At the same temperature, the vapor pressure of a solution containing 2 gram of a non-volatile, non-electrolytic solute in 100 gram of benzene is 256 bar. What is the molecular mass of the solid? ठीक है, ये भी इजी है. Example number 4, the vapor pressures of pure liquids A and B are 450 mm and 750 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Calculate the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition of the mixture in vapor phase. ठीक है, okay. Next question is the vapor pressure of एक मिनट. हाँ, the vapor pressure of ये 5% है of 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm. Calculate the molar mass of the solute. Vapor pressure of water at 373 Kelvin is 360 mmHg. ये केल्विन है. ठीक है, ये केल्विन है. Okay. Example number 6. At 25 degrees Celsius, the vapor pressure of pure water is 23.76 mm of Hg, and that of an aqueous dilute solution of urea is 22.98 mm of Hg. इसमें मोलैलिटी निकालना है. ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस. निकल जाएगा ये भी. सेवेंथ है what mass of a non-volatile solute urea NH2CO NH2 need to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. What will be the molality of the solution? ठीक है. Eighth है urea forms an ideal solution in water. Determine the vapor pressure of an aqueous solution containing 10% by mass of urea at 40 degrees Celsius. Vapor pressure of water at 40 degrees Celsius is 55.3 mm of Hg. ठीक है. ओके. 9th है
The vapor pressure of water at 293 Kelvin is 0.0231 bar, and the vapor pressure of a solution of 108.24 gram of a compound in 1000 gram of water at the same temperature is 0.0228 bar. Calculate the molarity mass of the solution of the solute. ठीक है, ये आपको सभी होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट elevation in boiling point. Okay, so we will going to start elevation in boiling point. Elevation in boiling point. All right. Elevation in boiling point. Okay. Elevation in boiling point का मतलब क्या है? इसका मतलब है the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर जिसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, अब कैसे करके होगा देखो. जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो कंटेन करके रख रहा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में. नॉन वॉलेटाइल जो होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा सोल्यूट का. तो जो भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा, और उसका प्रेशर बनाने के लिए सॉल्यूशन को हीट देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, ताकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो ऑलवेज हाई होगा देन द प्योर सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्योर वाटर है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है जिसका जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 बार है, या कह सकते हो 1 atm एट 373 केल्विन. मतलब वाटर बॉयल होगा 373 केल्विन पर, बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1.013 बार है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ सुक्रोज है, सुक्रोज जो है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, वो 373 केल्विन पर बॉइल्स नहीं होगा, उसको और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तभी उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, वाटर है, वाटर boils at 1.013 bar. At 373 Kelvin.
and sucrose. जो वेपर प्रेशर है सुक्रोज का, वेपर प्रेशर ऑफ सुक्रोज वो कम है, 1.013, ये पॉइंट है 1.013 बार एट 373 केल्विन। अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑन द एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, इसका ग्राफ मैं बना चुकी हूँ, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या है, जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, ठीक है। जो कर्व है ए और बी, यानी कि ए कौन सा है, ये ए है, ए एंड बी, ये जो है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और ये जो सी और डी है, ये सी है, सी और डी है, ये वेपर प्रेशर है फॉर द सॉल्यूशन एट द डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। और जो सी डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो बिल्कुल जस्ट ए बी के नीचे है, ओके। दिस इज बिकॉज जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके। यहाँ लिख लेते हैं, जो वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is less than that of the pure solvent at all temperature. At all temperatures, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये जो x है, x पर, ठीक है। यहाँ x पर जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 atm पर। यहाँ पर हमने हीट दी, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो x पर जो है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इक्वल हो जाएगा 1 atm पर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे इसे T नॉट बी, इसे कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और देखो और ग्राफ के अंदर जो y है, y पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm पर इक्वल हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट हम ये कहेंगे, कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट बी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, boiling point of solution, क्या आएगा TB, ठीक है। और TB जो है वो ग्रेटर होगा T नॉट बी से। देयर इज एन एलिवेशन और इंक्रीजिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। जो TB है, TB जो है वो ग्रेटर है T नॉट बी से, T नॉट बी से, ठीक है। सो आज की क्लास में यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बॉइलिंग पॉइंट इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड थैंक यू सो मच।